Ka jingelang jong ka sarkar jela ka balalam khamat do sembut mitrang ba ka jela ba persatuan tensong ha ka jinan lang menteri penroisar ba singau bhalang dar ki officer sarkar bat kinong ilam ka harijan panchayat committee ka balalong menta ka si kampat semlala ban siami kirai ki ba on penhuni ki ba ka jela namar ka jingbu kendon ketika committee ha ka bai de ba ka jing aja ka ban snai ki yeng ki sem ki bodon hadu laispa saupo art li kilong yeng ha po ka jaka khlem da phya ha ba kren mat kilat pathai kubor den blawai ka jelang sembut mitrang ba ka jelau ba persatuan tensong ulong yang menta ke sarkar kan hap pen kre ke detail project report kepala pensiat hakatrat urban affair habai daibat kimat jingdawa jong harijan pensiat komiti kepala pani ki jaka bansna ki laispa sauku art di kilong yeng hapo ka wei ke jaka banbu bat ai da ka jaka ka badai ka revenue land bat kwi kiwe. Okay friends, today again we had a meeting with the HPC relating to the subject of relocation. In fact, again, they have submitted a proposal to us. Of course, they agreed for relocation, but certain conditions they have submitted to us, where we discussed today. And again, ultimately, what we were decided today, from the government side, we will prepare a blueprint, detailed proposal from the government side, and then once that is done, we will communicate officially to them, and once that is done, they will sit down again with their residents over there and take a final decision. When will be the next meeting then? Next meeting, I think maybe by before 10 or 15 of next month, hopefully we'll be able to prepare all the detailed proposal to be submitted to them, and once that is done, then meeting will be held again very soon. So what are these certain conditions that? No, the condition is like this. In fact, what they wanted is, number one, they wanted, if possible, they wanted a separate location altogether for all the 342 household who already inventorized way back in 2008. That is number one. Then number two, in fact, the question of whether once the unit is constructed, whether they will be able to own that unit generation to generation. These are the issues where they wanted to get the detail, as I said to you, from the government side. So as I said to you, now we have already instructed Urban Affairs Department to do all the details, proposal, and then we will submit it back to them. And once that is done, then meeting will be held and we'll take a final call. Right now, we are yet to finalize the place, but of course, we are identifying not less than 2-3 places. So this also we will be able to tell you exactly once the Urban Affairs Department done all the details. No, in fact, right now we see this is the second meeting on the basis of the High Court order. Okay, and we will continue to do that till we reach to a conclusion where both sides, again from the government as well as from the HPC, once we are agreeable, then we will jointly file affidavit to the Honorable High Court to close down the case. No, that's what I told you just now. See, they wanted that it should be shifted to one place. All of them, means all the 342. For that also we agreed. And they said that it should be also within the government revenue land. That also we agreed. Okay, that also we agreed. Therefore, right now, as I said to you, I can't say anything beyond that. Let the Urban Affairs Department work out all the details, and then we will send back those detailed blueprint to the HPC, and again after that we will sit down across the table once again. I've already asked Urban Affairs Department to speed up this issue, and once that is done, we will send it to them. I think it will not take much, that maybe on or before 15th of May. Nakaliang Gurjit Singh, Secretary ka Harijan Panchayat Committee, uloong manakaliang jengki yang menta kin update ya ka DPR ka ba on pen kre da ka sarkar ka bai dei ba ki chakasa bat hadian kata kin salai ban pen sngo si ki brio ki basong na thamyo mulong bat lada baro ki labyang klempep kin saweng no ya ka mukodma ka bakila ujor ha High Court ru. हमारा जो प्रपोजल है ना, जो हमारा रेजुलेशन वहाँ पे मीटिंग कमेटी में जो लोग एग्री हुए हैं कि मतलब जितने लोग हैं सबको गवर्नमेंट लैंड दे,
तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, लैंड बना के देना, जैसा मतलब लैंड दे और घर बनाने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो दे। तो हम मतलब अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो डिसाइड करेंगे, तो फिर दोबारा जो मीटिंग होगा उसमें बताएंगे। से घर जो मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बना बोल रहे हैं ना, वो नहीं, हमने कहा है कि हमारा जितना फैमिलीज़ है वो सब फैमिली को 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली वो जो लैंड देने के लिए विद इन यूरोपियन वार्ड। तो जो घर बनाने के लिए हमने बोला है कि घर बनाने के लिए जो मतलब कॉस्ट है वो दिया जाए हम लोग को। अपना से घर बनाएंगे? हाँ, अपना से घर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहले जो म्यूनिसिपल ने क्वार्टर्स बना के दिए हैं जहाँ पे भी, वो सब तो डैमेज हो गया। अभी 20 साल भी नहीं हुआ, सब घर टूट गया है। तो जो बिल्डर आते हैं वो मतलब घर बना देते हैं और वो लास्टिंग नहीं होता है। आप क्या सरकार को पैसे देंगे? नहीं, हम लोग क्यों पैसा देंगे? हम लोग तो जो हमारा पास लैंड है उसके एक्सचेंज में मांग रहे हैं। जैसा मतलब वो जो हमारा पास जो लैंड है वो 3.33 एकड़, 3 एकड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो ज़मीन को एक्सचेंज में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो तकरीबन 9 एकड़ ज़मीन जो है, 9-10 एकड़ ज़मीन जो है वो हम लोगों को दे। वो हिमा मिलियम का लैंड नहीं है, क्योंकि हिमा मिलियम का लैंड था वो, लेकिन उसने तो दे दिया 1853 का, पहले तो उसने दे दिया ना वो लैंड हमारे कम्युनिटी को। तभी हमारा कम्युनिटी इतने सालों से वहाँ पे रह रहा है। वहाँ पे हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो तो मतलब उनका मर्ज़ी से, गवर्नमेंट का मर्ज़ी से वहाँ पे सेटल हुआ ना। तो अभी गवर्नमेंट अगर हम लोग को चाहता है, हम लोग रीलोकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट हो। अभी गवर्नमेंट प्रपोजल देगा हम लोग को। अभी वो प्रपोजल क्या होगा इस बात पे तो गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहा है। वो ज़मीन का वैल्यू तो ज़्यादा है ना, तो मतलब कानून में तो वैल्यूएशन होता है ज़मीन का। तो जो वो वैल्यू का, जितना वैल्यू का वो ज़मीन है उतना वैल्यू का ज़मीन हम लोग को देंगे वो। मतलब हमने डिमांड किया है कि यूरोपियन वार्ड में देने के लिए ज़मीन देंगे और घर बनाने के लिए पैसे भी देंगे। पैसे दें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगे। तो वो मान गए? नहीं, वो बोले हैं कि प्रपोजल देंगे। अभी गवर्नमेंट बोला कि प्रपोजल देंगे, मीटिंग कैबिनेट का मीटिंग में डिसाइड करेंगे। जो हमने जो हमारा कमेटी में जो डिसाइड हुआ ना, जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसाइड हुआ, उसका ऊपर में वो लोग जो मीटिंग करेंगे, फिर जो उसका जो गवर्नमेंट का क्या व्यू है वो देंगे और प्रपोजल देंगे। हम लोग वही कंडीशन रखा है कि जैसा जितना फैमिलीज़ है सबको 200 स्क्वायर मीटर घर दें और एक ही जगह में दे, जो लैंड देना 200 स्क्वायर मीटर लैंड, और जहाँ पे एक जगह में दे और यूरोपियन वार्ड के अंदर में दे। अगर गवर्नमेंट आपको एक ही जगह में नहीं दे सकता है जगह रहने के लिए, देने के लिए एग्री है गवर्नमेंट देने के लिए एग्री है। So how many are government employees in that land now? एम्प्लॉय से कोई कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो सेटलमेंट आज से नहीं है ना। वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। वो तो एम्प्लॉयज़ उनका जाना चाहता है जाएगा, नहीं जाना चाहता है नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हमारा तो जो कॉलोनी का कंसर्न है, क्यों जो हम लोग इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो जो हमारा जो राइट है उसके लिए हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं ना। जो एम्प्लॉयज़ तो बहुत एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट क्वार्टर्स देता है, देने के बाद में फिर उनका घर वहाँ पे है, वहाँ पे जब रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे जाके रहता है, वो लोग सेटल होता है। लेकिन तो ये सल्यूशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो क्वार्टर्स देंगे, फिर वो जब अगर मान लीजिए वहाँ से हम लोग एग्री नहीं होंगे, रीलोकेट नहीं होगा, तो फिर दोबारा फिर वो लोग जाके वहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा हल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहता है कि रीलोकेट करना है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन में रीलोकेट करना है। वो तो गवर्नमेंट अपना मर्ज़ी से। अभी देखिए हम लोगों को 2008 में सीएम ऑफ मिलियम ने लिख के दिया है कि ये जो ज़मीन है, ये उसका जो सीएम ऑफ मिलियम था 1853 में, उसने हमारा कम्युनिटी को दिया था। 2008 का जो कोर्ट में जब उसको बात होगा ना, तो कोर्ट में तो 2008 में जो लिख के दिया है, पहले जो लिख के दिया वही कोर्ट मानेगा ना। अभी जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करवाया है वो किस तरह से करवाया है? पैसा दे के 2 करोड़ रुपया दे के करवाया है। अगर वो बोलता है गवर्नमेंट का लैंड है तो फिर 2 करोड़ रुपया देने का क्या ज़रूरत था?
तो ये बात मतलब गवर्नमेंट ने जो इस तरह से किया है ना, 4 साल जो बिता दिया, डायरेक्ट हम लोग से बात करने से बात अलग था, मतलब अभी तक शायद इसका हल भी हो जाता था। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने 4 साल बिता दिया, अभी 1 साल बचा है गवर्नमेंट का, 1 साल भी नहीं है। तो अभी मतलब ये बात के लिए गवर्नमेंट आया हम लोग के पास, तो हम लोग भी उसमें पॉजिटिव है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो। हम लोग तो वहाँ पे परमानेंट है, लेकिन ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट हमारा जो शोषण कर रहा है कि वहाँ पे जितना जो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं देता है, पानी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं देता है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ठीक नहीं करता है। तो स्लम जो एक तरह से बनाया वहाँ पे, वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है, हम लोगों ने थोड़ी बनाया स्लम। अगर गवर्नमेंट इस तरह का परमिशन देता अगर हम लोगों को, तो वो स्लम नहीं होता था। अभी भी मैंने बोला है गवर्नमेंट को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्लम के लिए हम लोग को वहाँ से हटाना चाहता है, तो हम लोग स्लम अपना से उसको सबको ठीक करेंगे, आप हमको परमिशन दीजिए, वहाँ पे स्लम दिखाई नहीं देगा। Since now you are on the verge of resolving this particular issue, so is the HPC ready to even withdraw your petition from the Meghalaya High Court? अगर सेटलमेंट हो जाएगा तो हम लोग विड्रॉ करेंगे पिटीशन, वो तो दोनों साइड से होगा। जब ये हो जाएगा सेटलमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो विड्रॉ हो जाएगा।